Hi everyone. Today in this video we are going to get explanation of 8th lesson of the book First Flight of Standard 10. The name of the lesson is The Sermon at Banaras. This is basically an excerpt from a book written by Betty Renshaw. The name of the book is Values and Voices. Betty Louise Renshaw Barber, that is the full name of Betty Renshaw. इनका बर्थ हुआ शेनन मिसिसिपी सितंबर 3, 1927 में और इन्होंने शेनन हाई स्कूल में काफी हाईएस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखे और इसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री ऑब्टेन किया मिसिसिपी कॉलेज से और इसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स किया मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन से. As I earlier told you that this story is an excerpt from her book Values and Voices. So without any delay, let's proceed on to the explanation of the lesson. The Sermon at Banaras. What do you understand by sermon? Sermon क्या होता है? Religious talk. जो religious talk होता है ना, बहुत सारे आजकल गुरु मिलते हैं या बहुत सारे लोग मिलते हैं जो religious बातें करते हैं लोगों से. That is known as sermon. जो वो preach करते हैं, जो वो सब लोगों को बताते हैं, that is called sermon. कभी कभी एज अ जोक हम लोग ये सर्मन वर्ड यूज करते हैं, जैसे माँ लेक्चर दे रही है किसी बात पे या माँ समझाने की कोशिश कर रही है और वो रोज का काम है उनका, तो हम उन्हें जोक में बोलते हैं कि दिस सी माय मदर हैज स्टार्टेड हर सर्मन्स. ठीक है, तो ये जोक में सटायर में भी यूज होता है. In next question they have told you to know the meaning of some of the phrases given in the box. These phrases I'll explain you and I will give you meanings while explaining you the lesson. And in the third question, they are asking, have you heard the Sermon on the Mount? Who delivered it? The Sermon on the Mount was delivered by Jesus Christ to his disciples. ये जो Sermon on the Mount है, ये basically collection है इनकी teaching का जो Gospel of Matthew में मिलेगा और Gospel of Matthew summarize करता है Jesus Christ के moral और spiritual guidance. Right? Now, finally proceeding to the lesson. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. सभी लोगों को पता है गौतम बुद्धा, इनका जो लाइफ स्टार्ट हुआ था वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से. ये एक प्रिंस हुआ करते थे, ये राजकुमार हुआ करते थे. इनका जो लाइफ स्पैन है वो 563 BC से 483 BC तक था. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. जब ये 12 इयर्स के थे तो इन्हें स्कूलिंग के लिए हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेजा गया. 4 साल के बाद ये घर वापस आए और इन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली. ठीक है, he got married to a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. इन्होंने फैमिली लाइफ लीड की. इनका एक बेटा था, जैसे सूटेबल था रॉयल्टी के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही इन्होंने 10 इयर्स स्पेंड किया. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. Heretofore means before now, shielded means protected. तो अभी 25 की एज तक ये जो प्रिंस थे, अभी तक यानी कि इसके पहले तक इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया था वर्ल्ड की सफरिंग से. It is obvious because he used to live in palace. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. अभी ये हंटिंग के लिए जब बाहर गए तो चांस अपॉन मींस केम अक्रॉस बाय चांस, तो बाय चांस इन्हें एक सिक बंदा दिखा जो ऑब्वियसली पेन में होगा. फिर एक एज बंदा दिखा. एज बंदे इलनेस और पेन में रहते हैं, सफर कर रहे होते हैं लाइफ. इसके बाद इन्हें एक फ्यूनरल प्रोसेशन मिला. प्रोसेशन मींस अ नंबर ऑफ पीपल और व्हीकल मूविंग टुगेदर. वो जो क्रिमेशन के लिए जब पूरी वो रश जा रहा होता है ना, उसे कहते हैं प्रोसेशन. तो वो फ्यूनरल प्रोसेशन इन्हें मिला. और फाइनली एक मंक मिला जो आर्म्स के लिए बेग कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था. आर्म्स क्या होता है बेटा? मनी, फूड एंड क्लोथ्स गिवन टू पुअर पीपल. तो उसके लिए मींस वो भीख मांग रहा था. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. So moved him means to be emotionally affected, and enlightenment means, see here it is given. अब फर्स्ट टाइम इन्होंने ये सारी साइट्स जो सफरिंग की थी, पेन की थी, फर्स्ट टाइम देखी थी, तो वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते ही फर्स्ट टाइम देख रहे थे, ये टच्ड हो गए कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये वर्ल्ड में निकलेंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए.
He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 years तक इधर उधर घूमने के बाद फाइनली ये एक पीपल के ट्री के नीचे बैठे. देखो इस तरीके से, ठीक है. ये फोटो तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगा इनका देखने के लिए. Where he vowed to stay until enlightenment came. और वहां उन्होंने वो किया, उन्होंने कसम खाई, खुद से प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his understandings. अभी 7 days के बाद इन्हें सच में वो ज्ञान प्राप्ति हुई जो इन्हें चाहिए थी, और इसीलिए इन्होंने इस ट्री को रीनेम किया, दोबारा से नाम दिया, और उस ट्री का नाम क्या रखा? बोधि ट्री. बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि हो जिसमें, ठीक है. और अब गौतम बुद्धा ने टीच करना स्टार्ट किया और अपनी जो नई अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो एनलाइटनमेंट हुआ था, वो शेयर करना शुरू किया लोगों से. At that point, he became known as Buddha, the awakened or enlightened. और यही वो वक्त था जब इनका नाम क्या पड़ा? बुद्धा. बुद्धा मीन्स जो awakened है, जिसके पास ज्ञान है, ठीक है. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट रिलीजियस टॉक जो प्रीच किया था, जो लोगों को बोला था, जो लोगों को शेयर किया था, वो किया था इन सिटी ऑफ बनारस. और सबसे होली प्लेस जो बेदिंग के लिए माना जाता है, रिवर गैंजेस, वहां पे इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना सर्मन प्रीच किया था. दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. और वो जो सर्मन है वो प्रिजर्व करके रखा गया है और वो यहाँ अभी नीचे दिया हुआ है. यू विल फाइंड इट. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable means something that cannot be understood. ये जो इनका sermon इस lesson में दिया है, इसमें बुद्धा का wisdom reflect होता है. किस तरीके से इन्होंने easily इस lady को समझाया, उस एक suffering को जो समझना और जिसे सहन करना, जिसे tolerate करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. Okay, here the sermon goes. कीसा गौतमी had an only son and he died. कीसा गौतमी एक लेडी थी, एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." अब वो इतनी ज्यादा ग्रीव्ड थी, इतनी ज्यादा सैड थी, बट ऑब्वियस था, एक ही बेटा था, डेथ हो गई थी. तो उसने क्या किया कि उसकी डेड बॉडी को लेके वो नेबर्स के पास जा रही थी अपने उस बच्चे को लेके, और उनसे बोल रही थी कि प्लीज कोई मेडिसिन दे दो. और लोगों ने कहा कि शायद ये पागल हो गई है, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस. क्यों? क्योंकि इसके बेटे की तो डेथ हो चुकी है, तो मेडिसिन कहां से देंगे हम लोग. At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. काफी देर के बाद, काफी दूर कीसा गौतमी को एक बंदा मिला जिसने रिप्लाई किया इसकी रिक्वेस्ट का. उसने कहा देखो, दी मीन्स यू एंड दाई मीन्स योर. तो उसने कहा देखो, मैं तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे एक फिजिशियन पता है. And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni, the Buddha." और वो जो लड़की थी जिसका एक ही बेटा था, वो एक्सपायर हो चुका था, उसने कहा प्लीज मुझे बताइए ना कि कौन है वो. और उस मैन ने रिप्लाई किया कि तुम साक्यमुनि के पास जाओ, बुद्धा के पास. Kisa Gautami repaired to Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." So repaired means went to. कीसा गौतमी वेंट टू बुद्धा. वो बुद्धा के पास गई और वो रोने लगी और बोली कि लॉर्ड मास्टर प्लीज मुझे ऐसी मेडिसिन दे दो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, क्योर कर दो इसे. द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. और बुद्धा ने कहा कि मुझे ना एक मुट्ठी, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, जो सरसों के दाने होते हैं ना, वो चाहिए मुझे. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड. प्रोक्योर मींस क्या होता है बेटा? Procure means to obtain something, especially with difficulty. Generally to buy something, but here to get from somewhere, especially with difficulty. तो जब वो लड़की थी उसने सोचा वाओ, इतने छोटे से मतलब एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड से अगर मेरा बेटा क्योर हो जाता है तो इट्स वेरी इजी. तो वो बहुत खुशी में बोली कि ठीक है मैं लाके देती हूँ. बुद्धा added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend.
अब उसने इसके साथ एक शर्त लगा दी। उसने कहा मस्टर्ड सीड लाने तो है, हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स, बट वो मस्टर्ड सीड ऐसे घर से होने चाहिए जहां ना तो कभी किसी का बेटा एक्सपायर हुआ हो, ना हस्बैंड, ना पेरेंट और ना फ्रेंड, यानी कि कोई वहां एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। ऐसे घर से लेके आओ तुम मस्टर्ड सीड्स। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. अब वो जो बेचारी कीसा गौतमी थी वो एक घर से दूसरे घर जाती गई, लोगों को उससे सिंपैथी थी और वो लोग मस्टर्ड सीड बहुत इजीली ले आए और उससे कहा ये लो। But when she asked, did a son or daughter, father, mother die in your family? लेकिन जब उसने पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई बेटा या बेटी या तुम्हारे फादर या मदर कोई डेथ तो नहीं हुई ना तुम्हारी फैमिली में? They answered her, alas, the living are few but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. और उन लोगों ने आंसर किया कि सॉरी, बहुत कम ऐसे हैं जो जिंदा हैं, बहुत सारे लोगों को हम खो चुके हैं और प्लीज हमें वो जो हमारा डीप ग्रीफ है वापस से याद मत दिलाओ। And there was no house but some beloved one had died in it. और ऐसा उसे कोई घर नहीं मिला जहां किसी का कोई beloved की डेथ नहीं हुई थी। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Extinguished means to put out fire, put out the flame of something. ठीक है, अभी कीसा गौतमी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी और होपलेस हो गई थी, डिस्पेयर थी, क्योंकि उसे कहीं से मस्टर्ड सीड्स मिले नहीं थे और वो एक ना वे साइड पे बैठ जाती है और वे मींस रास्ते के साइड में बैठ जाती है और वो जो लाइट्स थी ना सिटी की वो वॉच कर रही थी वहां से। और वो लाइट्स वो क्या देख रही थी कि वो फ्लिकर कर रही हैं और फाइनली धीरे धीरे बुझ गई। फ्लिकर कर रही है मींस देखो, यूज अबाउट अ लाइट और अ फ्लेम टू कीप गोइंग ऑन ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन्स। तुम लोगों ने देखा होगा दिए का जो फ्लेम होता है वो ऐसे स्टैग्नेंट नहीं होता, स्टिल नहीं होता बल्ब की तरह, वो फ्लिकर करता है ऑन एंड ऑफ, कभी ऐसे कभी थोड़ा सा रोशनी आती है, कभी ज्यादा सी रोशनी आती है, दैट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग। तो वो सिटी लाइट्स को देख रही थी फ्लिकर अप होते हुए और फिर फाइनली एक्सटिंग्विश होते हुए, बुझते हुए। At last the darkness of the night reigned everywhere. Reigned means to rule. अभी और फाइनली जब ये जो सारी लाइट्स एक्सटिंग्विश हो गई, पुट आउट हो गई, तो क्या हुआ कि वो जो पूरी डार्कनेस थी रात की, वो जो अंधेरा था उसने डोमिनेट कर लिया, उसने कवर कर लिया पूरे शहर को। And she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. और अब इसने जो फेट ऑफ मैन, जो डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है उससे कंपेयर किया। क्या सोचा कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनकी जो लाइफ है वो फ्लिकर करती है, कभी अप कभी डाउन, कभी सॉरो है कभी हैप्पीनेस है, तो इस तरीके से वो फ्लिकर करती है और फाइनली इट इज एक्सटिंग्विश्ड, फाइनली डेथ होती है। ठीक है, इट इज इनएविटेबल, डेथ होनी ही है सबकी। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन माय ग्रीफ। और अब वो खुद से ही सोच रही है कितनी सेल्फिश हो गई थी मैं अपने ग्रीफ में, अपनी सैडनेस में। Death is common to all. Yet in this valley of desolation, this path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. उसे एहसास हो रहा है, वो रियलाइज कर रही है डेथ तो कॉमन है, सभी की डेथ होनी होती है। और वैली ऑफ डेजोलेशन क्या है? ये जो एरिया है, ये जो अर्थ है, दैट इज फिल्ड विद डीप सॉरो। इतने सारे लाइव्स में मिस हैपनिंग्स होते हैं कि जनरली पीपल आर फुल ऑफ ग्रीफ, सैडनेस, तो इसीलिए वो वैली ऑफ डेजोलेशन बोल रही है इस अर्थ को, इस प्लैनेट को। तो वो बोल रही है कि इस अर्थ पे एक पाथ है जो लोगों को इमॉर्टैलिटी की तरफ लेके जाता है, मींस अमर होने की तरफ लेके जाता है। वो कौन सा है? जिसने गिव अप कर दिया है सारा सेल्फिशनेस। ठीक है, जिसने सरेंडर कर दिया है, गिव अप कर दिया है और पूरा जो सेल्फिशनेस मींस अपने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया है, वो ही इमॉर्टैलिटी की तरफ जाता है। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. और mortals means those who are bound to die. जो भी लाइफ जिसका बर्थ होता है उसकी डेथ होती ही है। ठीक है, तो we all are mortals. One day we all have to die. तो बुद्धा बोल रहे हैं कि जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है ये बहुत ज्यादा ट्रबल्ड है, छोटी है और पेन है इस लाइफ में। ठीक है, For there is not any means by which those have been born can avoid dying. क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिसने भी बर्थ लिया है वो अवॉइड कर पाए डाइंग।
डेथ तो होनी ही है. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ. ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स. और कुछ नहीं तो अगर इलनेस नहीं हो तो ओल्ड जब हम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एज हो जाती है, तो उसके बाद हमें मरना ही होता है, हमारी डेथ होनी ही होती है. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे वो जो ripe fruits होते हैं ना, जब पक जाते हैं ना, तो उनका गिरना तय है, डेफिनेट है. Likewise, अगर हमने बर्थ लिया है तो हमारी डेथ डेफिनेट है, इनएविटेबल है. As all earthen vessels made by potter end in being broken, so is the life of mortals. जैसे वो जो मिट्टी के वेसल्स होते हैं जो पॉटर बनाता है, एंड में उन्हें टूटना है, टूटना तय है उनका. लाइकवाइज ये जो ह्यूमंस की लाइफ है, ये जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ है या लिविंग बींग्स की लाइफ है, ऐसे ही है कि इनका अगर इन्होंने बर्थ लिया है तो इनका मरना तय है. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. तो बोल रहे हैं कोई भी हो, यंग हो, एडल्ट हो, बेवकूफ हो या बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, सभी लोगों की डेथ होनी है. ओके, दे ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. और वो कह रहे हैं कि जिनकी भी डेथ होती है, जिन्हें डेथ ओवर पार कर लेती है, वो लाइफ से अलग हो जाते हैं, लाइफ से चले जाते हैं. कोई भी फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता है. किन्समैन मींस क्लोज रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप. तो कोई भी क्लोज रिलेशनशिप में हो वो अपने रिलेशंस नहीं बचा सकता. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. वो कह रहे हैं कि याद रखना, ये जो रिलेटिव्स जब वो लोग अभी देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा सैड हैं, लेमेंटिंग मीन्स फुल ऑफ सॉरो. वो बोल रहे हैं रिलेटिव्स के देखते देखते जो बहुत सॉरोफुल है, बहुत ज्यादा सैड है, उसके बाद भी वन बाय वन जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं वो दे आर कैरिड ऑफ बाय डेथ. लाइक ऑक्स को लेके जाता है ना स्लॉटर करने के लिए, स्लॉटर मीन्स टू किल एन एनिमल. लाइकवाइज these relatives are going one by one. So the world is afflicted with death and decay. Afflicted means affected by suffering, disease or pain. ये जो पूरा world है ये affected है suffering से, disease से, pain से, sorrow से. Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो grieved नहीं होते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि ये ही सच्चाई है, ऐसे ही जीना है. This is the life. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. ना रोने से, ना ग्रीव करने से, सैडनेस में रहने से ऐसा तो है नहीं ना कि हम पीस हमें मिल जाएगा, है ना. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. और gradually क्या होगा, इमोशनल पेन जितना ज्यादा होगा अल्टीमेटली बॉडी सफर करेगी. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. वो खुद को क्या कर लेगा, सिक बना लेगा, वीक बना लेगा. पेल मीन्स येलो विद वीकनेस, ठीक है. तो वो सिक बना लेगा, पेल बना लेगा, और उसके बावजूद भी अगर इसके बाद भी जो डेड पीपल हैं वापस आ सके, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है. जिनकी डेथ हो चुकी है इनके लेमेंटेशन से, इनके सॉरो के एक्सप्रेशन से वापस नहीं आएंगे. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grief. जो शांति चाहता है उसे क्या करना होगा, ये जो एरो लगा है ना हमारे अंदर, देखो सॉरो तो होगा ही, वो जो पेन है वो तो होगा ही. उसे क्या करना है कि उसे ड्रॉ आउट करना है उस एरो को. किस एरो को, जो लेमेंटेशन का है, मीन्स सॉरो का है, कंप्लेन का है. कंप्लेन करते हैं, भगवान से कंप्लेन करते हैं, ये तुमने क्या कर दिया हमारे साथ, है ना. ग्रीफ, सैडनेस का है, उस एरो को निकालना होगा, तभी हम पीसफुल रह सकते हैं. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जो अपने आप में, compose means calm, तो वो जिसने ये एरो निकाल लिया है, जिसने ड्रॉ आउट कर लिया है ये एरो, और जो कंपोज हो चुका है, काम हो चुका है, वो ही पीस ऑफ माइंड ऑब्टेन करेगा, उसे ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जो इस सारी सैडनेस को समझ गया है, इस दुनिया का फैक्ट समझ गया है कि डेथ इज इनएविटेबल, और वो क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा सॉरो से और ब्लेस्ड रहेगा. ठीक है, भगवान उसे ब्लेस करके रखेंगे, खुश रहेगा.
So this is how this sermon ends, and along with that, this lesson ends. My name is Meenakshi Sharma. I'm a teacher and your guide. If you have got the lesson well, please write it down in the comments box below. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up in my next video. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful. Take care.